Welcome back students. So today we are going to discuss a very important concept, that is derivative of inverse trigonometric function. So you know very well that we have so many inverse trigonometric functions, like we have 6 trigonometric functions, and we have similarly 6 inverse trigonometric functions like sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, as well as cosec inverse x. So we will find the derivative of all the inverse trigonometric functions one by one. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे for sin inverse x. So let we have given the function f of x is equal to sin inverse x. Now if we consider the domain of this function, so its domain is considered as, for f of x is equal to sin inverse x, if we talk about domain, so domain of this function, of course it will be -1 to 1. यू नो वेरी वेल, अगर हम यहाँ पर डोमेन की बात करते हैं तो इसका जो डोमेन होगा दैट विल बी -1 to 1. मीन्स साइन इनवर्स एक्स का जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 1, और जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी -1. अगर हम यहाँ पर इसके रेंज का बात करेंगे, रेंज हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? सो फॉर दिस फंक्शन रेंज इज गिवन एज, so range of this function that is considered as -π/2 to π/2. So this one is the range. Means we will apply maximum input -1 to 1, और जो हमें आउटपुट मिलेगा that will be -π/2 to π/2. So now we will focus on derivative. So here we can say let y is equal to f of x is equal to sin inverse x. We have given this information. Now if y is equal to sin inverse x, then if we take sin both side, so it can be written as, here we can consider taking sin both side. So it can be defined as sin y is equal to sin of sin inverse cancelled out हो जाएगा, of course this comes out sin y is equal to x, or we can also write it x is equal to sin y. Now we will take the derivative with respect to y. So it can be written as taking derivative with respect to x. So with respect to y हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे. So here we can write with respect to y. So it can be written as dx over dy is equal to d over dy sin y. And you know very well the derivative of sin y, of course it is given as cos of y. Okay, now what we can write cos y? Here we can write cos y is equal to under root of 1 minus of sin square y. Now we have given already that sin y is equal to x, so here we will replace the value of sin square y by using x. So it can be written as 1 minus of x square, and in left hand side we have given dx over dy. Now we can also write it, हम यहाँ पर दोनों साइड इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, और we can also multiply it by considering the cross multiplication. So it can also be written as dy over dx. It can be written as 1 over under root of 1 minus x square. So
this is the desired value of derivative of given function. Here the value of y, of course it is given as sin inverse x, so here we can say that d over dx of sin inverse x. Basically we have to find the derivative of sin inverse x with respect to x, so of course it is given as 1 under root of 1 minus x square. So students, like this process we can easily find the inverse trigonometric function derivative. तो इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन sin इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, दैट कम्स आउट 1 over under root of 1 minus x square. Now we will consider next one function. Now students, next one function is we will take f of x is equal to cos inverse x. अब हम कोसाइन फंक्शन के इनवर्स का यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो ऑफ कोर्स इट इज़ गिवन एज f of x इज इक्वल टू cos इनवर्स x. तो अगर हम यहाँ पर cos इनवर्स x के लिए डोमेन की बात करेंगे तो इस फंक्शन का डोमेन आपका डिफाइंड होगा डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन. तो साइन में आपका जो डोमेन होता है -1 to 1, कॉस में भी आपका जो डोमेन होगा मीन्स वी विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट दैट विल बी -1 to 1. सो डोमेन यहाँ पर भी आपका -1 to 1 ही रहेगा. अगर हम यहाँ पर इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो कॉस इनवर्स एक्स के लिए आपका जो रेंज होगा दैट विल बी 0 to पाई. नाउ अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे. वील एज्यूम इट लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. नाउ अगेन वी कैन राइट इट. दोनों साइड अगर हम यहाँ पर कॉस फंक्शन अप्लाई कर देंगे टेकिंग कॉस बोथ साइड, सो इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y. अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. सो टेकिंग डेरिवेटिव with respect to y, so it can be, so we are taking derivative with respect to y, so it can be given as dx over dy. This comes out d over dy cos y. Now अगर हम cos y की डेरिवेटिव की बात करेंगे with respect to y, so it can be given as minus of sin y. This one is the derivative of cos y. It can be given as dx over dy. So अब हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको चेंज कर देंगे हम. So students, sin y can be written as under root of 1 minus cos square y. Now here we can write it minus of cos y को हमने यहाँ पर एज्यूम करा था x, so it can be written as 1 minus of x square. So of course हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है dx ओवर dy आपको गिवन है. हमें फाइंड करना है यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू y. सो इट कैन बी रिटन एज dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 1 minus of x square, and of course we can replace value of y as cos inverse x, so it can be written as d over dx cos inverse x, and this comes out minus of 1 over under root of 1 minus x square. So this one is the inverse trigonometric function derivative of cos inverse function. तो cos inverse x का जो derivative होगा that will be minus of under root 1 minus x square. Next one function we will take. So students, next one function we are taking tangent function. So we can take f of x is equal to
tan इनवर्स x। सो अगर हम इसके डोमेन की बात करेंगे, सो इट कैन बी गिवन एज, सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन it can be given as, so for the tan function in the case of its inverse we can select any real number। तो यहाँ पर डोमेन आपका रियल नंबर होगा। और अगर हम इस फंक्शन के रेंज की बात करेंगे तो रेंज फॉर द tan इनवर्स x of course it will be -π/2 to π/2। so this one is the range। नाउ सेम प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगेन वी विल टेक लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सो अगेन हम यहाँ पर दोनों साइड अब 10 ले लेंगे। सो इट कैन बी गिवन एज, here we can write taking tan both side, so it can be given as tan y is equal to tan of tan inverse, ये दोनों फंक्शन आपके कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। सो इट कैन बी गिवन एज x। सो हियर वी कैन ऑल्सो राइट इट x is equal to tan of y। now what we will do, we will differentiate it with respect to y। so taking derivative with respect to y, with respect to y, so it can be given as dx over dy is equal to d over dy tan y। now अगर हम यहाँ पर tan y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ tan y? यस, इट इज गिवन एज sec स्क्वायर y एंड इट विल बी dx ओवर dy। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर sec स्क्वायर y को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स sec स्क्वायर को अगर हम tan स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, सो इट कैन बी गिवन एज 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर y। so this comes out 1 plus of tan स्क्वायर y। so अगर हम यहाँ पर y को फिर से रिप्लेस करें इन टर्म्स ऑफ x, so here we have taken tan y is equal to x, so it can be given as 1 plus of tan स्क्वायर y को हम यहाँ पर x स्क्वायर लिख सकते हैं। so it is dx ओवर dy इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो इट कैन बी गिवन एज डी ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ y को हम यहाँ पर फिर से क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x। सो ऑफ कोर्स इट कम्स आउट d ओवर dx of tan inverse x, this comes out 1 over 1 plus of x square। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम यहाँ पर tan फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो दिस वन विल बी द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, बहुत ईजीली हम यहाँ पर किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपके फर्दर रेस्ट फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन वी आर टेकिंग sec इनवर्स x। सो इट कैन बी गिवन एज f ऑफ x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। नाउ अगर हम इसके डोमेन की बात करें, सो इट्स डोमेन इट्स डिफाइंड एज, तो sec इनवर्स के लिए जो हमारा डोमेन होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ गिवन एज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्टिंग द इंटरवल -1 to 1। सो ऑल द रियल नंबर्स, यहाँ पर हम -1 से लेकर 1 तक का इंटरवल कंसीडर नहीं करेंगे। इस इंटरवल को हम यहाँ पर रियल नंबर से रिमूव कर देंगे। एक्सेप्ट दिस इंटरवल वी कैन टेक एनी वन वैल्यू ऑफ
रियल नंबर फॉर द इनपुट ऑफ दिस फंक्शन। रेंज की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन ऑफ कोर्स इट इज़ डिफाइंड एज 0 to पाई, 0 से लेकर पाई तक हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले पाएंगे, 0 to पाई एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू। हम यहाँ पर पाई का वैल्यू एज ए रेंज ऑब्टेन नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर पाई/2 का वैल्यू नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ से इस वैल्यू को ओमिट कर देंगे। नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड डोमेन एंड रेंज। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। अगेन वी विल से लेट y इज इक्वल टू f of x and that can be written as sec inverse x. So again it can be written as, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड sec ले लेंगे, so it can be given as sec y and sec inverse x, they will be cancelled out. So sec y is equal to x, or we can also write it x is equal to sec y. Now what we will do, we will differentiate it with respect to y. So taking derivative with respect to y, so it can be given as dx over dy is equal to d over dy sec y. Now all of you know very well that अगर हम यहाँ पर sec y का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो sec y का डेरिवेटिव क्या होता है, sec y tan y. So of course it can be written as sec y tan y, and left hand side we can write dx over dy. Now according to the domain of this function and the range of this function, if we will consider the value of x greater than 1, जैसे यहाँ पर हमें डोमेन गिवन है तो डोमेन में हम यहाँ पर -1 से लेकर 1 तक का वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे डोमेन के केस में, सो इट कैन बी गिवन एज, if we take value of x greater than 1, because either we can take value of x -1 और वी कैन टेक ग्रेटर देन 1, -1 से लेकर 1 तक का वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कंसीडर करेंगे, सो फॉर द x ग्रेटर देन 1, अगर x यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा तो sec y tan y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सो हियर वी कैन राइट sec y, it will be greater than 0, and tan y, it will be also greater than 0. Hence we can say for x greater than 1, this can be written as, यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव होगा, this can also be written as sec y mod of sec y and mod of tan y. So this comes out mod of sec y and mod of tan y. तो अभी हमने यहाँ पर ये वैल्यू चेक करा है फॉर x ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आपका sec y tan y दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसको मॉड कंसीडर कर लिया। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन 1 लेंगे, अगेन हेयर वी कैन राइट फॉर x लेस देन -1, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू -1 से स्मॉलर लेंगे, सो हेयर व्हाट विल बी द सिचुएशन, sec y this will be less than 0, and of course value of tan y this will also be less than 0. So in this situation again we will get same value, mod of sec y and mod of tan y. So here we can write dx over dy is equal to mod of sec y mod of tan y. So now it can be written as dx over dy, and initially we have taken sec y is equal to x, तो हम यहाँ पर इस tan को भी sec के फॉर्म में डिफाइन कर लेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज sec y, and of course we can write this tan y
in terms of sec it can be written as under root of sec square y minus 1. So this comes out. अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. सो हेयर वी कैन राइट sec y को आप यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, sec y का वैल्यू हमने यहाँ पर एज्यूम किया था x. सो इट कैन बी रिटन एज ऑफ कोर्स mod of x एंड अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर y को हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर minus 1. Okay, so we can also write it, basically this one is the value of dx over dy. So here we can also write, so it can be given as dy over dx is equal to 1 over mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पर भी हम y का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. सो इट कैन बी गिवन एज डी ओवर डी एक्स, और y का वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किया था sec इनवर्स x. सो इट कैन बी गिवन एज sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पर sec इनवर्स x का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. नाउ सो वी हैव फाइंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डेरिवेटिव. 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है. अब हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रह जाते हैं, उनका भी हम इसी तरीके से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, लाइक cot इनवर्स x एज वेल एज cosec इनवर्स x. सो अगर हम इसी तरह cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. यहाँ पर आपका माइनस साइन और आ जाएगा. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x, सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x. केवल यहाँ पर आपका माइनस साइन और आ जाएगा. सो हैंस like these process we can find out the derivative of all the trigonometric functions. Now we will consider one example. So we have taken the example, find the derivative of f of x is equal to under root of 1 minus x square sin inverse x minus of x is so इस फंक्शन का हमें यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो हेयर वी टेक लेट y is equal to f of x is equal to under root of 1 minus x square sin inverse of x minus of x. So now we will take the derivative. So it can be written as taking derivative with respect to x. With respect to x. Now so it can be written as dy over dx is equal to d over dx under root of 1 minus x square sin inverse x minus of x. So now इसको हम सेपरेट करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज डी ओवर डी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स. सो नाउ इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 minus x square, and of course derivative of x with respect to x, it is always
1, so it can be written as 1. Now we will apply the derivative of inverse trigonometric function. So it is under root of 1 minus x square, and of course derivative of sin inverse x we have obtained just, it is 1 over under root of 1 minus x square plus of sin inverse x, and if we will find the derivative of under root 1 minus x square, so if we take 1 minus x square as a t, so that can be written as dt over dx, या फिर अगर हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे, सो सबसे पहले हम यहाँ पर इस अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे, सो इट कैन बी गिवन एज डी ओवर डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2. सो इट कैन बी गिवन एज 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, सो दैट कैन बी रिटन एज एन एक्स टू द पावर n-1 फॉर्म से. सो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1/2 minus 1 according to the formula of this function, minus of 1. So ये माइनस आपका एज इट इज रहेगा. नाउ व्हाट वी विल डू, वी कैन राइट इट, ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो दिस कम्स आउट 1, एंड यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेंगे, सो दैट कैन ऑल्सो बी गिवन एज हेयर माइनस ऑफ, इसका भी अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो दिस कम्स आउट माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 1. सो ये आपका कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. सो दिस कम्स आउट 1 एंड प्लस ऑफ साइन इनवर्स x इंटू दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड ओवर 2 minus 1. So of course this minus 1 cancelled out by this 1 and 2 यहाँ पर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. So this comes out minus of x sin inverse x and that is पावर माइनस है, सो ये आपका डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा. सो इट कैन बी गिवन एज 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2. डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा. सो नाउ इट कैन ऑल्सो बी गिवन एज माइनस ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. Hence we can find the derivative of given function dy over dx. So students, here we can also use the derivative of inverse trigonometric function in our question if it is required. So students, आज हमने इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड किया और उसको हम कैसे प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं ये भी सीखा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ फर्दर सम अदर फंक्शंस.